کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بینر کے ذریعے سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، لنکڈن، ٹویٹر پہ آپ کیسے اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر کیسے زیادہ سے زیادہ کسٹمر لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بینر، ایسے بینر جو ہم آپ کو دیں گے 30 دنوں کے لیے 30 بینر یونیک ڈیزائن کے ساتھ میں، کیچی ٹیگ لائن کے ساتھ میں، جو آپ کے کسٹمر کو آپ تک لانے میں مدد کرے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، تو اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمپنی اور اپنے بزنس کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں گھس جائیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ 30 دنوں کے لیے 30 یونیک ڈیزائن وتھ کیچی ٹیگ لائن ہم سے حاصل کریں، تو آج ہی ہمیں کال کریں، ہمارے نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل نے $1.5 ارب کا بجٹ کیا منظور۔ افغان مہاجرین کے بارے میں ایران کے سفیر اور عبداللہ کے درمیان صلاح و مشورہ۔ داعش کے حملے میں زخمی افغان شہریوں کو ایران منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان، امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے نیا گروپ بنایا۔ کرنسی نوٹوں کو پوجا کے ذریعہ دوگنا کرنے کے نام پر دھوکہ دینے والے 2 نقلی بابا عادل آباد میں گرفتار مسلم شخص اور ان کی بہن کو ہوا 29 لاکھ کا دھوکہ۔ اتراکھنڈ میں بارش 9 افراد زندہ دفن، جملہ 29 اموات۔ راستے بند، DRF کے دستوں کو پہنچنے میں مشکلات۔ بیٹی کی محبت کی شادی، باپ نے مکان کو جلا ڈالا، 7 افراد زندہ جل کر فوت۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل نے $1.5 ارب کا بجٹ کیا منظور۔ اسرائیلی حکومت نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر ممکنہ حملے کی خاطر فوجی صلاحیت کے لیے $1.5 ارب کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اس بجٹ میں مختلف قسم کے ہتھیار، جن میں جنگی طیارے، ڈرون طیارے، خفیہ معلومات کا حصول اور ایسے ہتھیاروں کا حصول شامل ہے جو ایران کی جوہری صلاحیت کی فول پروف اور زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنا سکیں۔ ایران کے لیے مختص بجٹ سنہ 2021 اور 2022 کے لیے مختص ہے۔ رواں برس اس بجٹ میں سے 60% اور آئندہ سال کے لیے 40% تقسیم کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں بتایا گیا ہے کہ جب حال ہی میں امریکہ نے 72 بموں کے کامیاب تجربات کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بم زیر زمین اور انتہائی مضبوط عمارتوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان بموں کو F-15 ایگل بھاری لڑاکا سے گرایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی رپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ یہ بم ایرانی ایٹمی سائٹس پر حملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پاس F-15 اسٹرائک ایگل طیارے نہیں ہیں جو 72 جیسے طیاروں کو لے جا سکیں۔ افغان مہاجرین کے بارے میں ایران کے سفیر اور عبداللہ کے درمیان صلاح و مشورہ۔ داعش کے حملے میں زخمی افغان شہریوں کو ایران منتقل کر دیا گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ اور افغانستان میں ایران کے سفیر بہادر امینیان نے پڑوسی ملکوں من جملہ ایران میں افغان مہاجرین کے مسائل اور خاص طور سے ان کو منظم کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین اپنے ملک کے پڑوسی ملکوں من جملہ ایران و پاکستان کی سرحدوں کی طرف چل نکلے ہیں، جس کی بنا پر ان دونوں ملکوں کے حکام میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب شہر قندھار میں
फातिमिया जामे मस्जिद में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना बम धमाके में जख्मी होने वाले को इलाज व मुआलजे के लिए ईरान मुंतकिल कर दिया गया। इन जख्मियों को अफगानिस्तान में इलाज का सही बंदोबस्त न होने और अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत की ईरान से दरख्वास्त के बाद मुंतकिल किया गया ताकि ईरान में इन जख्मियों का सही तरह से इलाज हो सके। हिंदुस्तान, अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नया ग्रुप बनाया। हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने मशरिक वस्ता समेत एशिया के अहम माशी और आलमी उमूर पर मिलकर हम आहंगी के साथ काम करने का फैसला किया है। उन चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने आज एक वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर उन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और उन्होंने तुल अबीब से इस मीटिंग में शिरकत की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा आर लिपिड, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भी शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मिलकर तिजारत, माहौलियाती तब्दीली से निपटने, तवानाई के ताउन और बहरी सलामती जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि आज शाम चारों वज़रा की एक कामयाब और नतीजा खेज मुलाकात हुई जिसमें माशी तरक्की और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया गया और इस पर जल्द इक़दामात करने पर इत्तिफाक हुआ। Given so many overlapping interests, energy, climate, trade, regional security, बेटी की जानिब से मोहब्बत की शादी कर लेने पर एक शख्स ने अपने खानदान के 7 अफराद को जिंदा जला दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पेश आया। इस वाक़या में इसकी 2 बेटियां, दामाद और 4 नवासे नवासी जलकर फौत हो गए। सूबा पंजाब के मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला मंजूर हुसैन की बेटी फौजिया बीबी ने 1 साल कबल महबूब अहमद नामी शख्स से मोहब्बत की शादी कर ली। मंजूर हुसैन को ये रिश्ता पसंद नहीं था, उसके बावजूद फौजिया ने घर से भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद फौजिया को घर में आने नहीं दिया जा रहा था। बताया गया कि फौजिया अपने एक माह के शिरखार के साथ अपनी बड़ी बहन से मुलाकात करने इसके घर आई। इसका इल्म होने पर मंजूर हुसैन ने अपने लड़के शबीर हुसैन के साथ वहां पहुंचा और बड़ी बेटी के मकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें इसकी 2 बेटियां फौजिया, खुर्शीद बेगम, दामाद समेत 4 बच्चे आग में जिंदा जल गए। मंजूर हुसैन के दूसरे दामाद महबूब अहमद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। किंग खान के बेटे आर्यन खान की हिमायत में शिवसेना लीडर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे से वाबस्ता क्रूज डगरस पार्टी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिवसेना के लीडर किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पेश करते हुए आर्यन खान और दीगर मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक का हवाला पेश किया है। शिवसेना लीडर किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना से इस मामला में अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामला में गिरफ्तार आर्यन खान के बुनियादी हुकूक की हिफाजत की जानी चाहिए। शिवसेना लीडर ने अपनी दरखास्त में मजीद कहा कि डरगुस के मामला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के किरदार की भी तफ्तीश होनी चाहिए। दरखास्त में इस मामला की अदालत के जरिए जांच कराने का मुतालबा किया गया है। ख्याल रहे कि आर्यन खान फी अलहाल अर्थर रोड जेल में कैद है। उनके वकीला ने मुंबई की सेशन अदालत में दरखास्त जमानत पेश की है, जिस पर समाअत हो चुकी है। अदालत अपना फैसला 20 अक्टूबर को सुनाने वाली है। करेंसी नोटों को पूजा के जरिया दोगुना करने के नाम पर धोखा देने वाले 2 नकली बाबा आदिलाबाद में गिरफ्तार मुस्लिम शख्स और उनकी बहन को हुआ 29 लाख का धोखा। करेंसी नोटों को पूजा के जरिया दोगुना करने का वादा करते हुए 2 नकली बाबा ने
एक शख्स के पास से 29 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये वाकया तेलंगाना के आदिलाबाद में पेश आया। इस सिलसिला में जिला एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्रा ने अपने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कम वक्त में आसानी से ज्यादा रकम कमाने के लिए उटनूर मंडल के श्यामपुर का रहने वाला 30 साला सौगरू और गांधी नगर आदिलाबाद का 40 साला शंकर संगीता नकली बाबा बन गए। इन दोनों ने नकद रकम को पूजा के जरिया दुगनी करने का अवाम से वादा करते थे, जिस पर यकीन करते हुए न्यू एओजंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद फारूक ने इन दोनों को 15 जून को अपने घर बुलाया और उन्हें 50,000 रुपए नकद रकम हवाले की। इस रकम को एक कुंडे में रखकर उन दोनों ने पूजा की और कुछ देर बाद कुंडे से 80,000 रुपए निकाल कर फारूक के हवाले कर दिया, जिस पर फारूक को उन दोनों पर मुकम्मल भरोसा आ गया। बाद अज़ां फारूक की बहन भी इन दोनों को घर में तलब करके 1 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने 1.5 लाख बना दिए। ज्यादा रकम की लालच में भाई और बहन ने इन दोनों को 29 लाख रुपए की रकम हवाले की और ये दोनों इस रकम को कुंडे में रखकर पूजा की और कुछ देर बाद कुंडे से रकम निकाल लेने का मशवरा देकर वहां से चले गए। 1 घंटे बाद फारूक और उनकी बहन ने कुंडे में देखा तो इसमें रकम नहीं थी। नकली बाबा इस रकम को लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने 4 माह बाद दोनों नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11 लाख रुपए, 2 सेल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिया। उत्तराखंड में बारिश, 9 अफराद जिंदा दफन, जुमला 29 अमवात। रास्ते बंद, डीआरएफ के दस्तों को पहुंचने में मुश्किलात। रियासत उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश के नतीजा में कम अज कम 29 अफराद हलाक और 1 लापता हो गया। कुमाऊं डिवीजन के नैनीताल और अल्मोड़ा इजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश के कहर से 29 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1 शख्स लापता है। इस बारिश के कहर से सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जिला में हुआ है। इस जिला में 25 अफराद की बारिश से पेश आए हादसात की वजह से मौत हुई है। 1 मजदूर शदीद जख्मी है। रामगढ़ ब्लॉक के जेवतासकोना गांव में 9 मजदूरों जिंदा दफन हो गए। बताया जा रहा है कि सड़कों के बंद होने की वजह से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की टीमें यहां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से राहत रसानी के कामों में मुश्किलात दरपेश है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।